Good evening, friends. Today we will discuss the chapter International Business. Let me first tell you what is the meaning of international business. Then we will discuss different approaches of international business and different advantages, merits, demerits of doing international business. We will discuss details regarding international business. Simply, what is international business? International business simply means carrying out business beyond the national boundary of a country. It's the business beyond the national boundary of a country. It's the business which is related to import and export. When you purchase something from foreign countries, we call it as import. And when we sell something to foreign countries, it is known as export. So, international business is all about carrying out the business operations beyond the national boundaries of a country. So, international business is also known as cross-border business, or it is known as transnational business. The business is carried out in transnational form. The business which involves several countries, that is known as international business. Generally, international business are in form of three forms. One is import. What is import? Import means purchasing from a foreign country. And second one is export. What is export? Export simply means selling to foreign country. Another point is there that is known as intraport. What is intraport? Export, import, intraport business. What is intraport business? Generally, in this case, what we do, we purchase from one country and sell it to another country. That is known as intraport business. What is intraport business? Generally, you might have seen there is an allegation against India that India is purchasing oil at a cheaper rate from Russia and selling it to other developing countries. And it is making some business, as a result of which it is financing the Ukraine war of Russia. There is an allegation against India. So that is known as intraport business. So importing from one country and exporting it to another country. Intraport is a combination of import and export. So international business is all about import, export, intraport business. International business simply relates to cross-border transactions. In case of cross-border transaction, across the border, purchase or sale of goods is taking place. Purchase or sale of services are taking place. Purchase or sale of resources are taking place. Purchase or sale of processes are taking place. Goods are purchased across nations. Services are purchased across nations. Now, at sitting in India, you can pursue a course of Harvard University, a distance course. That will be purchasing of service. Nowadays, for many foreign talented doctors sitting in US or UK, they are doing operations in India. We are sitting here, but we are serving the customer service of many MNCs of US, UK.
We have BPO business, KPO business. These are form of trade of services. Resources are traded. Investments are traded. There is foreign investments. Foreign investment coming into business India and foreign investment going out of India. We will discuss all those things, all those concepts in relation to international business. Now, first, I will give an idea of what are the approaches of doing international business. There is an author, international author, that is Douglas Wine and Perlmutter. They have given 4 important approaches of doing international business. And these approaches combinedly known as EPRG model of international business. EPRG approaches or EPRG model. There is a question, first important question is, what is EPRG approach or EPRG model of doing international business? International business can be done in 4 approaches. One is ethnocentric approach. Another is polycentric. E stands for ethnocentric approach. P stands for polycentric approach. R stands for regiocentric approach. And G stands for geocentric approach. I will discuss all these approaches one by one. First, what is ethnocentric approach of doing international business? Next, what is polycentric approach of doing international business? Next, regiocentric approach of doing international business, and geocentric approach of doing international business. Anybody? अगर किसी का माइक ऑन हो गया ऑफ कर लीजिए. So first, ethnocentric approach of doing international business. What is ethnocentric approach of doing international business? What is ethnocentric? Ethnocentric. बेटा सबको म्यूट कर लो, नहीं तो ऐसे क्लास नहीं होगा. Ethnocentric approach of doing international business. What is ethnocentric approach? Ethnocentric approach simply means there are many companies which are following ethnocentric approach of doing international business. What is ethnocentric? Ethno means domestic. Ethnocentric approach means they follow the same domestic approach which they are doing in Indian business to international business. They just extend the domestic approach towards doing international business. That is known as ethnocentric approach. They see the foreign market as an extension of their domestic market. I am giving an examples. Let's take an example. One company is MDH. What it produces? It produces spices. Lekin which is the target customer for MDH? MDH produce spices only for Indian customers. उनका बेस मॉडल इंडियन कस्टमर्स के लिए वो स्पाइसेस बनाते हैं. एथनोसेंट्रिक वो क्या करते हैं, लेकिन MDH is selling its product in more than 100 countries. But the same advertisement, same product which is sold in India is also sold in outside countries. That is known as ethnocentric approach of doing international business. In this case, the companies see the international market as an extension of domestic market. They extend the same domestic approach towards international business, which they follow locally. That is known as ethnocentric approach of doing international market. So they extend the domestic approach to international market. That is known as ethnocentric approach. They normally produce the product for domestic consumers. And if there is excessive production, they extend their branch in some foreign country and sell those excessive productions. That is known as ethnocentric approach. MDH, Patanjali, many companies are there. Bata is a foreign company. Many Indian companies which are following the ethnocentric approach of doing international business.
जब भी कोई कंपनी नया नया होता है और नया नया इंटरनेशनल बिजनेस में जाता है, वो पहले एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है. इन अर्ली डेज ऑफ internationalization, small companies generally follow ethnocentric approach of doing international business. So ethnocentric means extending the domestic approach to international business. That is known as ethnocentric approach of doing international business. Next one is polycentric approach. Poly means many. What is polycentric approach? In this case, companies follow different approach for different markets. If they enter into 5 different market, they will follow 5 different approach. For every market, they design their 4 P's separately. What is 4 P? Product, price, place, promotion. For each market, they design their product separately. That is known as polycentric approach of doing international business. Let's take an example. One company is HUA, Hindustan Unilever Limited. Or one company is, let's take an example, that is polycentric approach of doing international business. Pepsi. Pepsi is doing business in 180 countries. But in each country, according to the need, requirement, it design its product. वो पेप्सी जो इंडिया में मिल रहा है, यूएस में वही पेप्सी नहीं है, अलग चीज है. इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेप्सी आर सोल्ड, पेप्सी और कोक आर सोल्ड इन बॉटल्स. But in US, UK, European countries, Pepsi are sold in cans. The pricing strategy of Pepsi here and there is different. The sugar content of Pepsi in Indian market and sugar content in European market or American market are different. They design different product for different markets. They market it differently. The pricing strategy is different in different product countries. Promotion strategy is different in different countries. And if we follow this type of approach, that is known as polycentric approach, many approach. Ethnocentric, one approach for all the international business, that is known as ethnocentric approach. Polycentric, many countries, many approach. That is known as polycentric market of the approach of doing international business. In this case, the companies adjust their 4 P's according to the environment of the country where it does its operation, which is known as host country. होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बिजनेस अपना 4P डिजाइन करते हैं, अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वो डिजाइन करते हैं होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से. इसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस. नेक्स्ट अप्रोच ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस इज regiocentric approach. We are discussing EPRG model of doing international business. What is regiocentric? Regiocentric means in this case, the companies follow one strategy for a region. What is region? Let's take an example. This is the world. In world, there is India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan. All these consist Southeast Asia, Southeast Asian countries. So what they will do, they will design a product as per for the entire Southeast Asian region. They will design the product for the entire Southeast Asian region and they will sell it in this region. They will design their product for the entire region, but they will sell it in the region with some sort of promotional strategy. In India, the promotion might be done by Shah Rukh Khan, where in Pakistan, some other actor of Pakistani films. But they design the product for the entire region. Because the customers in this region
Southeast Asian region, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Nepal, are more or less same. Their taste, fashion are more or less same. So they design a product for an entire region. This type of approach is known as a regio-centric approach of doing international business. One company is there. Let's take an example. That company is Unilever Limited. Unilever. This Unilever company do business in India in the name of Hindustan Unilever Limited. And in Pakistan, Pakistan Unilever Limited. The same locks which is sold in India is also sold in Pakistan. लेकिन यहाँ का एडवर्टाइजमेंट में हम लॉक्स को लगाते हुए किसको दिखाते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, we use Kareena Kapoor here for promoting locks brand. There we will use Jia Khan, but the product will be same. Product will be designed for an entire region. That is known as regiocentric approach of doing international business. Next approach is geocentric approach of doing international business. What is geocentric? Geocentric, in this case, the companies see the entire world as their market. They see the entire world is a single market. And the companies which follow geocentric approach, they follow the entire world. They see the entire world as a single country. They design the product for the entire globe. They operate in parent-child model. What is parent-child model? There is a parent company. There are many child companies. That is known as holding subsidiary model. There is a holding company. Between them, there will be several subsidiary companies. And all the subsidiary companies will be controlled by the parent companies. The geocentric approach is generally followed by companies where they design the product not for one country, but they design the product for the entire globe. That is known as geocentric model of doing international business. जब भी एप्पल का नया फोन आता है, एप्पल नया फोन बनाता है, वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं बनाता है, पूरा दुनिया के लिए बनाता है. That is geocentric approach of doing international. किसी का माइक ऑन हो गया है, ऑफ करो भाई, नहीं तो कल से मेरे को सबको बंद करना पड़ेगा इस क्लास में. कौन है वो? जियोसेंट्रिक अप्रोच ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, जहां पर पूरा दुनिया एक कंट्री. एप्पल का नया फोन आता है, वहां पर क्या होता है, पूरा दुनिया को हम क्या सोचते हैं, वो कंट्री, एक कंट्री. That is known as geocentric approach of doing, in following this particular model of doing international business. That is known as geocentric approach of doing international business. Next approach is, what are the stages of internationalization? आपका दो क्वेश्चन आता है. पहला क्वेश्चन आता है, what is EPRG model of doing international business? We have discussed EPRG model, ethnocentric, polycentric, regiocentric, and geocentric approach of doing international business. That is known as EPRG model of doing international business. नहीं तो क्वेश्चन आता है, what are the different stages of internationalization of a particular company? वो एक कंपनी जब इंटरनेशनल कंपनी बनता है, इंटरनेशनलाइजेशन बिजनेस करता है, कौन कौन सा स्टेज से जाता है? There are 5 scenarios of doing international business. One is, there will be a domestic company, and there will be international company, then there will be multinational company, then there will be global company, there will be transnational company. All these companies look similar.
but there are certain difference. What is international? All these are different. First, I will discuss what is a domestic company. Then we will discuss all these things. Domestic company. First, I will discuss what is a domestic company. Next, we will discuss what is a international company. Next, we will discuss what is a multinational company. Next, we will discuss what is a global company. Next, we will discuss what is a transnational company. We'll discuss one by one. First, what is a domestic company? डोमेस्टिक कंपनी क्या है? डोमेस्टिक कंपनी एक ऐसा कंपनी है which limits all its operation in the national political boundary of a country. तो डोमेस्टिक कंपनी जो बिजनेस करता है एक कंट्री के अंदर बिजनेस करता है. इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारा कंपनी है जो इंडिया के अंदर ही बिजनेस करते हैं. दे नेवर थिंक ऑफ ग्रोइंग ग्लोबली. वो कभी ग्लोबल होने की कोशिश नहीं करते. इस तरह का कंपनी हमेशा लोकल बिजनेस करते हैं. They limits their operation within the national political boundary of a country. अगर उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है या उनका बिजनेस को बड़ा करना होता है, what they do, they go for diversification. They do not go to offshore market. They limit all their operation within one country, that is known as domestic company. डोमेस्टिक कंपनी जब थोड़ा बड़ा होता है, वो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है, तो वो बनता है इंटरनेशनल कंपनी. व्हाट इज इंटरनेशनल कंपनी? इंटरनेशनल कंपनी एक ऐसा कंपनी है कुछ फोकस इज डोमेस्टिक बट एक्सटेंड द विंग टू फॉरेन कंट्रीज. इसका मतलब क्या है? उनका मेन बिजनेस डोमेस्टिक का है, लेकिन अगर डोमेस्टिक बिजनेस में थोड़ा बहुत फायदा होता है, वो क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 फॉरेन कंट्री में अपना एक एक ब्रांच खोलकर बिजनेस करते. जैसे मैं एग्जांपल दिया था पतंजलि, उसका मेन फोकस इंडियन कस्टमर्स. एमडीएच, उसका मेन फोकस इंडियन कस्टमर्स. अगर उनको चाहिए फॉरेन में बिजनेस करने के लिए, फॉरेन में 1-2 ब्रांच खोलते हैं, उसके थ्रू में वो बिजनेस करते हैं. उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी. सो इंटरनेशनल कंपनी extend the domestic country's 4P or marketing mix, product mix, pricing mix to the international market. So international company normally follows which approach? Ethnocentric approach. तो इंटरनेशनल कंपनी क्या है? जो कंपनी फॉरेन बिजनेस करता है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करके उस तरह का बिजनेस को हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी. सेकेंड आया आपका मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी. व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी? मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री के हिसाब से अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन डिसाइड करता है. इसीलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी डोमेस्टिक कंपनी. हमको पता नहीं चलता है वो कौन सा कंट्री का है, वो हमारे हिसाब से अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन करता है. दे अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट मार्केट. इनडायरेक्टली दे अडॉप्ट व्हिच अप्रोच? दे अडॉप्ट पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. तो एक मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है. That is known as multinational company. इंटरनेशनल कंपनी एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है, मल्टीनेशनल कंपनी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करके बिजनेस करता है. नेक्स्ट आया ग्लोबल कंपनी. व्हाट इज ए ग्लोबल कंपनी? ग्लोबल कंपनी क्या है? ग्लोबल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो 2 स्ट्रेटेजी फॉलो करता है. क्या क्या? आइदर इट फॉलोज ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी. व्हाट इज ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? ये कंपनी क्या करते हैं? फर्स्ट, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ये अपने कंट्री में सामान बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं. जैसे बहुत दिन तक हार्ले डेविडसन जो बाइक हुआ करता था, वो यूएस में बनाता था और उसको दुनिया भर में सेल करता था.
लेकिन प्रोडक्शन कहां पर करता था? अपना होम कंट्री में। दे प्रोड्यूस इन होम कंट्री बट मार्केट दिस प्रोडक्ट ग्लोबल। इसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ग्लोबल कंपनी आइदर ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है या नहीं तो ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। व्हाट इज ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी? दुनिया भर में सामान बनाते हैं, अपने कंट्री में बेचते हैं। बेटा दुनिया भर में सामान बनाते हैं मतलब बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस में ऑपरेट करते हैं, यूएस में सेल करते हैं, लेकिन सामान चाइना में बनाते हैं, सामान बांग्लादेश में बनाते हैं, चाइना इंडिया में सामान बनाते हैं, क्योंकि यहां पर सामान बनाना सस्ता होता है। जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है जैसे गारमेंट्स हुआ, गारमेंट का प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्री में सस्ते में होता है। बहुत सारा वर्ल्ड क्लास गारमेंट मैन्युफैक्चरर अपना बेस बांग्लादेश में रखते हैं। बांग्लादेश में देखोगे, बांग्लादेश की इकोनॉमी में गारमेंट प्रोडक्शन एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वहां पर चीप लेबर मिलता है। गारमेंट प्रोडक्शन इज ए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। तो दो तरह का कंपनी ग्लोबल कंपनी होता है, आइदर अपने यहां सामान बनाता है दुनिया भर में बेचता है, या नहीं तो दुनिया भर में सामान बनाता है अपने यहां पर बेचता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। नेक्स्ट कंपनी इज ट्रांसनेशनल कंपनी। व्हाट इज ट्रांसनेशनल कंपनी? ट्रांसनेशनल कंपनी क्या है? ट्रांसनेशनल कंपनी दुनिया भर में सामान बनाते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं। वो सामान उस कंट्री में बनाएंगे जिस कंट्री में सस्ते सामान बन सकते हैं। दे प्रोड्यूस, मार्केट, इन्वेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे ऑपरेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया भर में सामान बनाते हैं, दुनिया भर में मार्केटिंग करते हैं, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पूरा दुनिया को एक जैसा देखते हैं। उस तरह का कंपनी को हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। जैसे डेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, वो ट्रांसनेशनल कंपनी। व्हाट इज ट्रांसनेशनल कंपनी? ट्रांसनेशनल कंपनी का जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन होता है। व्हाट इज जियोसेंट्रिक? दे थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। They are influenced by the information of all the nations of the world. They scan information worldwide. They design the product as per social, cultural, economic tradition of different countries. They have a global vision. They operate globally. They design their strategy globally. They purchase from those countries from where the cost is minimum. They obtain material from the best sources. So what is this type of companies follows geocentric approach for doing international business. So we have discussed how many type of internationalization, stages of internationalization. फर्स्ट कंपनी इंटरनेशनल कंपनी बनता है, फिर मल्टीनेशनल कंपनी, फिर ग्लोबल कंपनी, फिर क्या होता है ट्रांसनेशनल कंपनी या टीएनसी। नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। हम तो डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारा कंट्री में क्यों बिजनेस करेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस करने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम बोलते हैं बॉटम लाइन। हम अपना बॉटम लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारा कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल जाते हैं, जैसे एचपी हुआ, अप्पल हुआ, डेल हुआ, दुनिया भर में सामान बेचेंगे ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ टॉप लाइन। व्हाट इज टॉप लाइन? टॉप लाइन का मतलब है सेल्स। इधर सेल्स को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल जाते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल जाते हैं। बहुत सारा जापानीज ऑटोमोबाइल्स कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक फार्म ऑफ जापान सेल प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंक्रीज द सेल्स एंड टू गेट स्पेशलाइजेशन। जैसे जेनपैक्ट इंडिया में बिजनेस करता है, बीपीओ बिजनेस, क्योंकि यहां पर अच्छा क्वालिटी का लोग मिलते हैं सस्ते रेट पर। वेदांत मित्तल स्टील दुनिया भर में जाकर स्टील कंपनी बिठाते हैं, क्योंकि उनको
रिसोर्सेस चाहिए, आयरन ओर चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर एक कंट्री में बिजनेस करेंगे तो उस कंट्री में कुछ हो गया, आपका पूरा पैसा गया। तो बहुत सारा कंपनीज क्या करते हैं, बिजनेस को 4-5 कंट्री में करते हैं। किसी एक कंट्री में रिसेशन आ गया तो दूसरे कंट्री में तो रिसेशन आएगा, ऐसा नहीं है, अनलेस देयर इज ए ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन 8-10 साल में कभी एक बार आता है, लेकिन बिजनेस साइकिल हर साल में, किसी साल में किसी कंट्री में चांदी चलता है, किसी कंट्री में मंदी चलता है, कहीं पर बूम पीरियड चलता है, कहीं पर रिसेशन पीरियड चलता है। तो to get diversification benefit also we do international business. Then to get competitive advantage and to minimize risk we do international business. These are the objectives of international business. Next we will discuss what are the advantages, significance, merits of doing international business. इंटरनेशनल बिजनेस करने का क्या फायदा? पहला फायदा, हमको बड़ा मार्केट मिले, वाइडर मार्केट। इंटरनेशनल बिजनेस करने से हम अगर डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, हमारा मार्केट छोटा है, हम अपने कंट्री के बीच में बिजनेस करते हैं। अगर हम इंटरनेशनली करते हैं, हमारा मार्केट बड़ा होता है। जब आपका मार्केट बड़ा होता है, आप बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते हैं, बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं। जब भी किसी चीज को आप बड़े क्वांटिटी में बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम आने लगता है, आपके साथ कोई कॉम्पीट नहीं कर पाता है, आप इतना सस्ते में सामान बनाते। जैसे चाइना का हर कंपनी दुनिया भर में सामान बेचता है, बहुत हेवी क्वांटिटी में बनाता है, तो चाइनीज प्रोडक्ट का जो रेट होता है दुनिया में, और कोई उसके साथ कॉम्पीट कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। मैं अभी समझाया था, बिजनेस साइकिल का मतलब हर कंट्री में बूम रिसेशन चलता रहता है, चांदी मंदी चलता रहता है। आप अगर एक कंट्री में ही बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, आप उस कंट्री का बिजनेस साइकिल आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन आप अगर दुनिया भर में बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। आप बिजनेस साइकिल के इफेक्ट को हटा सकते हैं इंडिविजुअल कंट्री का, लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन आएगा आप अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड रिस्क। जब भी बिजनेस बहुत सारा कंट्री में होता है, आपका रिस्क स्प्रेड ओवर हो जाता है, योर रिस्क स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, आप सिर्फ यूक्रेन में बिजनेस कर रहे थे, तो यूक्रेन में एक अटैक हुआ, पूरा बिजनेस आपका गया। लेकिन आप अगर 10-15 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ तो 10-15 कंट्री पर अटैक नहीं होगा, अनलेस इट इज ए वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार कभी 50-60 साल में एक बार होता है। लार्ज स्केल इकोनॉमीज, जब भी आप बहुत बड़े क्वांटिटी में बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम आता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन यू प्रोड्यूस in large quantity and do international business. Next, what are the other advantages of doing international business? Potential for untapped market. Untapped market का मतलब जिस मार्केट में जो अभी कोई गया नहीं, आप अगर उस मार्केट में जाएंगे, you will get the benefit of early entry. आपको पता होगा, जब भी कोई प्रोडक्ट नया नया आता है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग प्राइसिंग टेक्निक। फिर धीरे धीरे जब प्रोडक्ट जनरलाइज होता है, उसका प्राइस गिरने लगता है। तो जब भी आपको ऑन टैप्ड मार्केट में इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री में जाएंगे जहां पर अभी तक वो प्रोडक्ट गया नहीं है। इंडिया में अभी आप देखेंगे, अगर टेलीफोन के मार्केट में 4G चल रहा है, अभी 5G के लिए कंपटीशन चल रहा है, 5G आ गया। लेकिन बहुत सारा अफ्रीकन कंट्री में है, अभी 2G भी नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में भी 2G नहीं चल रहा है ठीक से। 3G 4G 5G का मतलब अलग है। तो वो सब मार्केट अनटैप्ड है। आप अगर यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करेंगे, कंपटीशन ज्यादा है। अभी भारतीय एयरटेल सोच रहा है अफ्रीकन मार्केट में बहुत सारा टावर लगाकर बिजनेस करेंगे, क्योंकि वहां तक अभी तक जियो जैसा कंपटीशन लाया गया इंडियन मार्केट में। स्टारलिंक आ रहा है एलन मस्क का, वो भी अपना इंटरनेट बेस्ड
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर प्राइस और भी नीचे जाएगा। इतना कंपटीशन में कौन घुसता है? चलो अफ्रीकन मार्केट में कोई नहीं जा रहा है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस करने से आप इंटरनेशनली जो जो नया टेक्नोलॉजी आता है, जो जो इंटरनेशनल बेस्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आता है, जो मार्केट इंटेलिजेंस आपको इंटरनेशनली मिलता है, उसका जो नया प्रोडक्ट बनता है इंटरनेशनली, उन सब के बारे में आपका जानकारी बढ़ेगा। तो आप वो सब टेक्नोलॉजी को आपके डोमेस्टिक बिजनेस में भी इंक्लूड करने लगेंगे, तो आपका डोमेस्टिक बिजनेस का भी फायदा होने लगेगा। These are the competitive advantages. What are the other advantages? Division of labor. जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, आप अगर किसी जगह पर स्पेशलाइज्ड हैं तो आप वही काम करेंगे। जैसे ब्राजील स्पेशलाइज कर दिया कॉफी प्रोडक्शन में, ब्राजील जैसा कॉफी बनाता है जिस क्वालिटी का और जिस रेट पर बनाता है, दुनिया में कोई बना नहीं सकता है। इंडिया केनिया टी प्रोडक्शन में, जापान ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में, इंडिया बांग्लादेश टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, हम लोग इन सब में स्पेशलाइज कर लिए हैं। दुनिया में हम जैसा प्रोडक्ट, हम जैसा क्वालिटी और इतना सस्ते रेट पर और कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा, कंट्री कंट्री के बीच में डिपेंडेंस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वर्ल्ड का रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। सो दीज आर सम ऑफ merits of international business. What are the other merits of international business? There will be optimum utilization of world resources. There will be best utilization of world resources due to international business. लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ये सब एडवांटेजेस है, बट देयर आर सर्टेन अदर एडवांटेज। देयर विल बी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? उनका कल्चर हमारे कंट्री में आएगा, हमारा कल्चर उनके कंट्री में आ जाएगा। आप देखेंगे अभी हम जोर शोर से इंडिया में वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और यूएस में अभी दिवाली होली सब मनाने लगे हैं। इसको बोलते हैं कल्चरल इंटरमिंगलिंग। एक ग्लोबल कल्चर की शुरुआत हो रहा है। दिवाली इज नॉट ए इंडियन फेस्टिवल, इट्स ए ग्लोबल फेस्टिवल। वर्ल्ड योगा डे हम मनाते हैं, 140 प्लस कंट्री वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। इट्स नॉट ए इंडियन फिनोमेना। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने से हम कोशिश करते हैं पूरा दुनिया को एक बना दे, पूरा दुनिया को एक धागे में पिरो ले, knitting the world into one village, जहां पर पूरा दुनिया का इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड हो, पूरा दुनिया का सोसाइटी इंटरलिंक्ड हो, और सब लोग सोचे वन फॉर ऑल फॉर वन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पूरा दुनिया को एक कर देने को बोलते हैं ग्लोबलाइजिंग द वर्ल्ड। दीज आर दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल फैक्टर। देयर आर मेनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज इन मेनी कंट्रीज वेयर इंटरनेशनल बिजनेस इज हैम्पर्ड। इराक ईरान वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, कौन आप इंटरनेशनल यूक्रेन में बिजनेस कर रहे हैं, रशिया अटैक किया। डिसमेंटलिंग ऑफ यूएसएसआर हो, सिविल वॉर हो, पाकिस्तान में अभी कोई नहीं जाना चाहता है। श्रीलंका का हालत जो हुआ है, कौन सा कंट्री जाकर वहां पर बिजनेस करेगा? देयर विल बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए हर कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट हर 10 दिन में बदलता है, पॉलिसी चेंज होगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं हो सकता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट demerits of or problem in international business is political instability. Huge foreign indebtedness, बहुत सारा कंट्री बहुत सारा लोन लेकर बैठे हुए हैं। मेक्सिको, पोलैंड, रोमानिया, केनिया, इंडोनेशिया, रोमानिया, ग्रीस, इतना लोन लेकर बैठे हुए हैं, दे कैन नॉट रीपे।
जैसे हम लोग रिपे नहीं कर पाते हैं तो हमारा दिवालिया निकलता है, वो सब उन सब कंट्री का दिवालिया निकलने वाला है। उस कंट्री में जाकर कौन बिजनेस करेगा? उसको बोलते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस। सॉवरेन डेट क्राइसिस, सॉवरेन का मतलब गवर्नमेंट, सॉवरेन डेट क्राइसिस, बहुत सारा कंट्री सॉवरेन डेट क्राइसिस में इंपैक्टेड है। दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट क्या क्या है? एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी। आपको पता होगा जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो पेमेंट होगा। पेमेंट नॉर्मली होता है हार्ड करेंसी में। व्हाट आर दी हार्ड करेंसी? वर्ल्ड में कौन कौन सा करेंसी में जनरली इंटरनेशनल ट्रेड होता है? सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूएसडी में, यूएस डॉलर में। डॉलर बहुत सारा कंट्री का करेंसी, कनाडा का भी करेंसी है, वो है कनाडियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन हम बात कर रहे हैं दुनिया में यूएसडी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होने वाला कंट्री, यूएसडी, यूएस डॉलर। नेक्स्ट ट्रेडिंग होता है किसमें? नेक्स्ट ट्रेडिंग होता है आपका यूरो में, यूरोपियन यूनियन। 28 कंट्री पहले थे, अभी 27 कंट्री मिलकर एक यूनियन बना है, उनका करेंसी को बोलते हैं यूरो। सेकेंड मोस्ट शॉर्ट आउट करेंसी इन द वर्ल्ड इज यूरो, उसमें ट्रेड होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड किसमें होता है? जेपीआई में होता है, जेपीआई में होता है। व्हाट इज जेपीआई? जेपीआई का मतलब जापानीज येन, उसमें ट्रेड होता है। और किसमें ट्रेड होता है? जीबीपी में। जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड में ट्रेड होता है। और अभी नया नया करेंसी आया है हमारे पड़ोसी का करेंसी सीएचआर। बट सीएचआर चाइनीज रेन मिनबी, चाइना का करेंसी का नाम है रेन मिनबी, जिसको बोलचाल की भाषा में युआन कहा जाता है। युआन ऑफिशियल नाम नहीं है, ऑफिशियल नाम है रेन मिनबी, चाइनीज रेन मिनबी। ये 4-5 करेंसी है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लेकिन ये करेंसी का वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है। बट अब फ्लक्चुएशन जब आएगा हमारा इनकम एक्सपेंसेस भी बदल जाएगा। आप मैं एक एग्रीमेंट किया हूं, किसी को सामान बेचूंगा $2 में, आज डॉलर का दाम 80 है तो मेरे को मिल रहा है 160 रुपया। कल अगर $1 का दाम 75 हो गया, मेरे को मिलेगा 150। मेरा कैश फ्लो अफेक्टेड होगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, करेंसी रिस्क। जब भी एक्सचेंज रेट का इंस्टेबिलिटी होता है, द इंटरनेशनल द countries, the companies which are doing international business, they are subject to currency risk or exchange rate fluctuation risk. Next, another problem in international business is entry requirement. बहुत सारा कंट्री क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को रोकते हैं। दे हैव सम एंट्री बैरियर्स। बहुत सारे, जैसे इंडिया में अभी तक हम मल्टी ब्रांड रिटेल को अलाउ नहीं किए। सिंगल ब्रांड रिटेल इज अलाउड इन इंडिया 100%, मल्टी ब्रांड नहीं। मल्टी ब्रांड मतलब एक दुकान जिसमें बहुत सारा कंपनी का ब्रांड रहेगा। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी ब्रांड रिटेल चेन इंडिया में आना चाहते हैं, हम रोके हुए। हम बोलते हैं कुछ बिजनेस में आप आएंगे तो इंडियन प्लेयर के साथ जॉइंट वेंचर करके आइए, जैसे इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में हम बोलते हैं पूरा आपको नहीं देंगे। बजाज अलियंस, आईसीआईसीआई प्रू, एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी के बीच में जॉइंट वेंचर होगा। कहीं पर फ्रेंचाइजिंग मॉडल में आ सकते हैं आप, मैकडोनाल्ड। देयर आर कैप, आप इतने % से ज्यादा लगा नहीं सकते हैं। बहुत सारा कंट्री ये बैरियर्स डालते हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। These are problems in international business. What are the other problems? There are many tariff barriers, non-tariff barriers, quota, tariff, non-tariff, quota. These are certain barriers to trade. These barriers are imposed by government on international business. Import tax, import barriers, quota,
इतने से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो उसके ऊपर ज्यादा रेट का टैक्स लगेगा। दीज आर नोन एज बैरियर्स और हॉडल्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट वन इज करप्शन। आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है। बहुत सारा कंट्री में देयर इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, देयर इज रेट टेपेजी, दे आस्क फॉर ब्राइब्स, दे आस्क फॉर किकबैक्स। ये ब्राइब्स किकबैक्स डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारा ज्यादा है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर उस कंट्री में आकर बिजनेस नहीं करना चाहते। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स? ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट। मैं बताया था व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। द एटीट्यूड ऑफ बाबूज, आईएएस, ओएस, लाइसेंस राज, लाइसेंस के लिए इतना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। These are bureaucratic practice of different governments act as a hurdle in international business. What are other hurdles? Technological priority. What is technological priority? Piracy का मतलब duplicate, which is not original. Copying the original and producing duplicate. 1200-1500 करोड़ रुपया देकर एक एक हॉलीवुड का मूवी बनता है, वो रिलीज होने का 5 दिन 10 दिन के बाद यहाँ पर आरडी के सामने 15 रुपया 10 रुपये में वो उसका मिल जाता है। पायरेसी जो 15,000 करोड़ 5,000 करोड़ 8,000 करोड़ लगाया है मूवी में, तो पायरेसी कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। वो इतना पैसा खर्चा करके एक चीज आपके प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को आपके यहाँ पर बेचेगा, उसका इमीडिएट प्रोडक्ट तुरंत आपके यहाँ पर आ जाएगा। प्रायोरिटी प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पायरेसी का। लोग अपना प्रोडक्ट लाएंगे, आप पायरेटेड प्रोडक्ट निकाल लेंगे, खुद कुछ नहीं बनाएंगे। फार्मा में बहुत सारा ऐसा होता है। फार्मा कंपनी कोई नया ड्रग्स बनाते हैं, उसका जेनेरिक वाला वर्जन इंडिया वाला बना देता है। टेक्नोलॉजिकल पायरेसी, इट इज ए प्रॉब्लम इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंडिया में जेनेरिक ड्रग हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर। जेनेरिक ड्रग कोई बना नहीं सकता, इंडियन कंपनी लेस स्ट्रिंजेंट, इसीलिए बहुत सारा जेनेरिक ड्रग्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स? क्वालिटी मेंटेनेंस, दैट इज अनदर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल बिजनेस। क्वालिटी मेंटेनेंस, आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बहुत सारा कंट्री क्या करते हैं, एक्सेसिव हाई क्वालिटी का मांग करते हैं। जैसे यूएस, हमारे यहाँ का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को जानबूझकर यूएस वाला अपने वहां पर सेल नहीं होने देता है, बोलता है इसमें बहुत सारा आयरन कंटेंट है जो हमारे लोगों का हेल्थ के लिए ठीक नहीं। हमारे मैंगो को रोकते हैं, बोलते हैं कि ये क्वालिटेटिव नहीं है। चाइनीज प्रोडक्ट को रोकते हैं, बोलते हैं इसमें चाइल्ड लेबर की यूज हुआ है। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें चाइल्ड लेबर नहीं है। These are quality maintenance. Quality controls are there, and there are high cost involved in international business. What are the high cost? What are the different type of cost? There is market survey cost, product management cost, quality upgradation cost, managerial efficiency cost. International business, doing international business involves higher cost and higher risk. What are the other problems of doing international business? आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, यू हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्री। हर कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस अलग। एक हाँ सर, कौन? हाँ हाँ, कौन? मुझे आई कैन एज। हम्म हम्म हम्म
What are the problems of international business? Next problem is, आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आपको डिफरेंट लीगल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आपको डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर से, यहाँ का लैंग्वेज अलग है, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहां का लैंग्वेज अलग, लैंग्वेज बैरियर्स विल बी देयर, कल्चरल डिफरेंसेस विल बी देयर, यहाँ का कल्चर वहां का कल्चर अलग। जब मैकडोनाल्ड पहली बार इंडिया में आया, बहुत सारा कल्चरल इश्यूज फॉलो किया। लोग सोचते हैं वो अपना बर्गर में बीफ मिलाता है, तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए, कल्चरल इश्यूज। फिर क्या किया, वो बीफ मेनू को पूरा हटाया, नया नया टाइप का इंडियन कल्चर के हिसाब से बर्गर बनाया। जैसे आलू टिक्की बर्गर दुनिया में कहीं पर नहीं मिलता है, इंडिया में मिलता है। डिफरेंट मॉनिटरी सिस्टम, हर कंट्री का मॉनिटरी सिस्टम अलग है, यहाँ का इंटरेस्ट रेट वहां का इंटरेस्ट रेट अलग है, एंड अदर गवर्नमेंट imposed barriers. There are certain other government imposed barriers which you have to follow in case of international business. So एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया, व्हाट आर EPRG मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, मेरिट्स ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। किसी को अगर इन सब के बारे में कुछ डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकता है। यस, आप पूछ सकते सर काइंडली क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन से हमें सर क्वेश्चन पॉलीसेंट्रिक अप्रोच स्लाइड। हाँ, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है, आप जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के कल्चर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उस कंट्री के कस्टमर के हिसाब से आप अपना मार्केटिंग, आपको पता नहीं चलेगा वो आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा है। आप अगर यूएस में बिजनेस करना चाहते हैं, यूएस कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉली मींस मेनी। सर स्लाइड सर पॉलीसेंट्रिक स्लाइड, वो स्लाइड तो मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके सर, थैंक यू। टेक एनी हेजिटेशन, आई विल शेयर ऑल द स्लाइड्स। ठीक है, आप कोई चैट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए, किसी एक दो का मेल आईडी मैं एक दो को भेज दूंगा, वो पूरा सबको दे देंगे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल स्लाइड्स विल बी शेयर्ड, ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड। नेक्स्ट, और कोई डाउट है? ओके, अगर कोई डाउट नहीं है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू। जाइए सेमीफाइनल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उनको उनका जो क्यों आस्ते करेंगे गौतम इस पर बोल कर लेते हैं 50 बनाने की क्षमता बना और ऐसी काफी और बहुत ज्यादा स्टेज में पानी की आप देखो गौतम से इसका माइक ऑन हो गया आपका? पहला और बहुत